Welcome back to Gyanvarsha. Today we'll discuss CSI NET previous year question on vulva formation in C. elegans. Okay. In the last video we discussed about the mutation cases, all the mutation cases we discussed. Okay, so today we'll move to questions. So first question is, in C. elegans, during embryogenesis, an anchor cell and 6 hypodermal vulval precursor cells VPCs get involved in forming the vulva. If three of the hypodermal VPCs are killed by a laser beam, a normal vulva is still formed. This could be due to the following reason. In which combination, and they gave 4 statement, and in that we have to choose the correct one. Okay, so they are saying कि 6 VPCs होते हैं, हमें पता है P3, P2, P8, P, जिसमें से 3 VPCs हाइपोडर्मल VPCs को किल कर दिया गया है. हाइपोडर्मल मीन्स टर्शरी VPCs को P3P, P4P एंड P8P को किल कर दिया गया है बाय लेजर बीम. तो तब भी नॉर्मल वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है. इसका रीज़न क्या है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, as 6 hypodermal VPCs form an equivalence group of cell, out of which only 3 participate in vulva formation and 3 cell remain as reserve cells. Okay, this option is correct. We know that because हमने देखा था कि जो 6 VPCs थे उनमें इक्विवेलेंस ग्रुप होता है वल्वा फॉर्मेशन के लिए, जिसमें से 3 जो है सिर्फ वल्वा फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं और जो बाकी के 3 होते हैं वो टर्शरी मतलब हाइपोडर्मल सेल्स बनाते हैं. ठीक है, और जो वल्वा फॉर्मेशन में पार्ट करते हैं जिसमें से जो P6P होता है वो सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल बनाता है, और P5P एंड P7P लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल बनाता है. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज, व्हेन 3 hypodermal VPCs are killed, the 3 neighboring hypodermal non-VPCs get freshly recruited. This option is wrong because freshly recruitment नहीं होता है किसी भी VPCs का. जो 6 VPCs होते हैं वही रोल प्ले करते हैं. Next option is, anchor cell function as an inducer which can induce epithelial cell of the gonad to get recruited to compensate for the loss. This option is also wrong. Next option is, anchor cell act as an inducer which can especially induce only 3 hypodermal cells to form the vulva. This option is correct because it only induced 3 hypodermal cells and the remaining 3 were taking in the formation of vulva formation. Okay, so the correct option is fourth one, A and D. So we'll move next. Next question is asked in CSI NET June 2015. Development of vulva in C. elegans is initiated by the induction of small number of cell by short range of signals from a single inducing cell. With reference to this, following statement were put forward, and in these 4 statements we have to tell one the truth one, means true, which statement is true. So first statement is, when the anchor cell was ablately early in development, no vulva formed. This option is correct, क्योंकि अगर हम एंकर सेल को हटा देंगे तो क्या हमारा कोई भी वल्वा फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि Lin3 जो एंकर सेल था वो Lin3 प्रोटीन को दे रहा था, जिसकी एज अ लाइगेंड वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से लेट23 पे वो आके बाइंड कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा वल्वा फॉर्म हो रहा था. नेक्स्ट इज, इन अ डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट ऑफ लेट23 अ प्राइमरी वल्वा फॉर्म्ड बट द सेकेंडरी वल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट इज, अ सेल अडॉप्टिंग a primary fate inhibits adjacent cell from adopting the same fate by lateral inhibition involving Lin39 and also induces a secondary fate in these cell. This option is also wrong because Lin39 तो स्पेसिफिकेशन के लिए था VPCs की. कौन इनहिबिट? Lin12 था जो कि लेटरल वल्वा सेल को सिग्नल देता था कि वो लेटरल ही बनी रहे, वो प्राइमरी ना बने, मीन्स वो सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल जाके एडजेसेंट सेल को सिग्नल देता था. तो Lin12 था, ना कि Lin39. Lin39 is for necessary specification of VPCs. Okay, the next option is, a constitutive signal from the hypodermis inhibit the development of both the primary and secondary fluid but is overruled by the initial signal from the anchor cell. This option is correct. So the correct option is third one, A and D. Okay, so we'll move next. Next is CSI NET December 2017. During vulva development in C. elegans, the anchor cell produce Lin3 protein which interact with the Let23 protein present on the 6 vulva precursor cells that form an equivalence group. The central lineage P6P adopt the primary fate. The adjacent VPCs P5P and P7P adopt the secondary fate, and the rest VPCs adopt the tertiary fate.
फ्यू म्यूटेंट एंड फिनोटाइप आर लिस्टेड गिवन बिलो। सी ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वो म्यूटेशन केसेस इजीली समझे हैं तो। इसमें से हम पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट म्यूटेंट के लिए कॉम्बिनेशन हम बताना है। तो देखिए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन3, अगर लिन3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए लिन3 एंकर सेल से आ रहा था, लिन3 प्रोटीन जो कि लेट23 की रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा था, जिसकी वजह से वल्वा फॉर्म होता था। इसका मतलब वल्वा फॉर्म नहीं होगा अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है लिन3 का। तो फर्स्ट इज P5P, P6P, P7P adopt primary fate, this first one is wrong. Second is multi-vulva, no. P6P adopt primary fate, no. All VPCs adopt tertiary fate, this option is correct. तो A का fourth means from first and second we have to choose, okay, from first or second. Loss of function, now we'll move to B. Loss of function of lin3 and gain of function of let23. देखिए loss of function हो रहा है lin3 का, पर क्या हो रहा है let23 का gain of function हो रहा है। तो let23 मीन्स उसे कोई लाइगेंड की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेंगे रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेंगे विदाउट नीड ऑफ लाइगेंड तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीवल्वा का फॉर्मेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी सेकेंड। तो हम चूज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ए फोर्थ एंड बी सेकेंड, ओके। बट विल रीड मोर। रिड्यूस्ड फंक्शन, सी इज रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ लिन3। अगर रिड्यूस्ड फंक्शन हो जाएगा लिन3 का तो देखिए क्या होगा, P6P adopt primary fate and rest of the PPC adopt tertiary fate, because ऑलरेडी ग्रेडियंट बना हुआ था लिन3 की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर उसका और कम कंसंट्रेशन हो जाएगा तो सीधे वो टर्शरी फेट बनाएंगे। नेक्स्ट इज डी इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन3। जब लिन3 का ओवर एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा, P5P, P6P एंड P7P adopt primary fate, ओके। P4P एंड P8P adopt secondary fate. Are you getting? ओवर एक्सप्रेशन जब हो जाएगा तो आर यू गेटिंग? तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। सो विल मूव नेक्स्ट। देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन अगर आपने वो म्यूटेशन केसेस इजीली समझे हैं तो। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। फर्स्ट हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट इज द 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंकर सेल टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज इन द लॉस ऑफ फंक्शन lin12 mutant both cell become uterine, whereas in gain of function mutant both cell become anchor. This option is wrong. Why it is wrong? Because lin12 के mutant अगर loss of function हो रहा है lin12 का तो क्या होगा, वो एंकर सेल बनाएगी, और अगर गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है तो वो क्या बनाएगी, यूट्रीन टिश्यू, जबकि ये उल्टा दे रखा है इसमें। नेक्स्ट इज इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 6 VPCs डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एंकर सेल अगर डिस्ट्रॉयड हो जाएगी तो जो 6 VPCs है वो क्या बनाएंगे, टर्शरी सेल्स, ओके। द नेक्स्ट इज द एंकर सेल वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू नॉच डेल्टा मीडिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट। मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि हम लोगों ने जब डिस्कस किया था कि नॉच डेल्टा पाथवे की रोल आता है। द नेक्स्ट इज द पैराक्राइन फैक्टर सीक्रेटेड बाय द एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट्स द नॉच डेल्टा पाथवे। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है पैराक्राइन फैक्टर। पैराक्राइन फैक्टर कौन सा होता है, lin3। lin3 क्या करता है, पहले let23 पे जाके बाइंड करता है। let23 क्या करता है, सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल में वो DSL को एक्टिवेट करता है एडजेसेंट सेल के lin12 से बाइंड होने के लिए, ठीक है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ओके। सो इफ यू like our video, please like it. For material visit, go for Gyanvarsha Telegram channel and ask your query on gyanvarshaquery@gmail.com, and please subscribe our channel. Thank you.